Good morning, students. Today we are going to start one new topic of chapter 6. Chapter 6 means accounting procedure, rules of debit and credit, and today's topic is balancing of an account. So first of all, what do you mean by balancing of an account? So after completion of a particular time period, maybe after completion of a day, a month, one quarter, 1 year, it's compulsory, it's necessary to know the amount due to another party and the amount which is receivable from another party and which amount payable to the another party. Clear? So what are the total amount of expenses and what is the total income regarding that particular time period? So it's compulsory to know to answer all these questions, you can say. So we have to we are maintaining one account. So if we want to know the answers of these questions, then we have to balance that account. So balancing means, you can say, difference between total of debit and credit side. Clear? As we all know that each and every account has two sides. Left hand side means debit side and right hand side means credit side. So in balancing of an account, we have to do the total of both the sides, then we have to find out the difference between both the sides. Clear? Suppose we are maintaining one account of Ram, that is Ram's account. So first of all, we have to write down each and every transaction according to the date, and we have to write down the amount of that particular transaction. So in balancing of an account, we have to total all the means amount of all that particulars. Means we have to total debit side as well as credit side. Suppose the total of debit side's amount is 10,000 and the credit side's amounts total is 8,000. Then we have to find out the balance. Balance means we have to find out the difference between the total of both the sides. So the difference between the total of both the sides is equal to 2000. Means 10,000 minus 8,000 is equal to 2000. So we have to write down the 2000's amount, means the difference of the amount in that particular side which is shorter. ठीक है, यहाँ 8,000 है, यहाँ 10,000 है. सो शॉर्टर साइड कौन सी हुई आपकी? 8,000. सो यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द शॉर्टर साइड सो दैट द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स विल बिकम इक्वल. ठीक है. नाउ द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स is 10,000. Clear? So this is called balancing of an account. So some means a particular procedure you have to follow regarding to balance an account. So first of all, first step is you have to find out the total of both the sides. Then you have to calculate the difference between both the sides total. Then you have to write down the difference in the shorter side. As first of all, we have to find out the total of both the sides. Means the total of debit side is 10,000, total of credit side is 8,000. Then second step is we have to calculate the difference between both the sides total. So we have to find out the difference. Means 10,000 minus total of credit side 8,000. So the difference between both the sides is equal to 2,000. Then according to third step, we have to enter the difference in the shorter side. So shorter side is credit side, this one. So we have to write down the amount of difference, means amount of 2,000 in the shorter side, means in this side, so that the total of both the sides will become equal. Now the total of both the sides is equal to 10,000. So you always keep in mind some points regarding balancing of account. That is, suppose if debit side's total is more as compared to credit side, if debit side's total is more as compared to the credit side, then we have to means we can say that it's a debit balance, because debit side's total is greater. Then we can say that it's a debit balance of that account. So we have to write down in credit side, because credit side is shorter. So we have to write down the difference amount in credit side by writing by balance carried down. ओके अगर आपने दोनों साइड्स का टोटल कर लिया है और आपकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 10,000 आ रहा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, 8,000 आ रहा है,
सो हम ये कहेंगे कि ये आपके डेबिट बैलेंस है, इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, शॉर्टर साइड पे डिफरेंस अमाउंट को राइट करना है। ये शॉर्टर साइड है, क्रेडिट साइड। सो डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज 2000, यू हैव टू राइट डाउन हेयर एंड यू हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस carried down in front of this amount means 2000. clear? at the end of the session means जिस डेट पे भी आपको वो फाइंड आउट करना है बैलेंस, यू हैव टू राइट डाउन द सेम डेट। क्लियर? सो यू हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन मीन्स ये बैलेंस आपने कैरी डाउन किया। सो इन द वेरी नेक्स्ट डे, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे दिस बैलेंस बिकम द ब्रॉड डाउन बैलेंस। सपोज आपने यहाँ 31st of March को ये बैलेंस फाइंड आउट किया है। So the very next day is 1st of April. So on 1st of April you have to write down in debit side two balance, same balance with same balance of amount 2000 will brought down, two balance brought down amount 2000 same। ठीक है, जिस डे के लास्ट में आपने बैलेंस, जिस डे पे आपने बैलेंस फाइंड आउट किया है वो बैलेंस आपका कैरी डाउन लिखते हैं, वो डिफरेंस अमाउंट से होगा, आपका टोटल सेम आ जाएगा और वही बैलेंस अगले मींस नेक्स्ट डे पे आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपने नेक्स्ट डेट पे वही बैलेंस को ब्रॉड डाउन करना है। इसका मीन्स क्या होता है, देखो आप राम का अकाउंट बना रहे हो, राम की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि राम का डेबिट बैलेंस है। राम के डेबिट बैलेंस का मीन्स क्या हुआ कि वो आपका डेटर है। ठीक है, देखो डेबिट बैलेंस किसका होता है, डेबिट बैलेंस या तो आपकी एसेट्स का होगा, मीन्स आपके पास वो प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर आपके जो हैं डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस का होगा। ठीक है, अब राम कोई एक्सपेंस तो नहीं है, राम एक पर्सन है, सो मीन्स दिस इज़ योर प्रॉपर्टी एसेट। एसेट में क्या आते हैं राम के नेम से, डेटर्स। तो राम आपका क्या है, डेटर, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। इट मीन्स बिजनेस इज़ लाइबल, बिजनेस हैज़ राइट टू रिकवर ₹2000 फ्रॉम राम। बिजनेस के पास ये राइट है कि वो 2000 रुपीज़ राम से रिकवर कर सकती है। क्लियर? सो अगर ऐसे ही किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, देन यू कैन से दैट दैट अकाउंट हैज़ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो वो बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। और आप कहाँ पे राइट करोगे, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्टर है, देन यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड। तो आप क्या राइट करोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट डे पे वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही बैलेंस आप आगे लेकर आओगे। क्लियर? वांट टू क्लियर द सेम रूल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट through one example. I am taking 7th sold illustration, means 7th illustration. According to this illustration you have to open one T-shape account. T-shape means each and every account has one shape that is quite similar to the alphabet of T. Clear? So you have to prepare one T-shape account for furniture. आपको furniture का T-shape account बनाना है and write the following transaction on the proper side, and these are the transactions regarding some particular dates. So you have to write down on proper place, on proper side you have to write down these transactions. So first of all we have to prepare furniture account. So you have to write down furniture account. इसकी जगह पर आप एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर? दिस और दिस। नेक्स्ट यू हैव टू मेंटेन सेम 4 कॉलम्स इन डेबिट साइड एंड 4 कॉलम्स इन क्रेडिट साइड। ये आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो मे बी क्योंकि डेट आपको मेंशन नहीं है यहाँ, सो इन्होंने स्किप किया हुआ है। अदरवाइज यू हैव टू मेंटेन वन डेट कॉलम हियर, देन पर्टिकुलर्स कॉलम, देन one JF. you have to maintain journal folio, means the page number of journal folio from where you are picking that particular transaction, you have taken that particular transaction. Clear? And same columns in credit side, means date, particulars, JF and amount column. So first transaction is, because we are maintaining furniture account, so furniture account is related to the real account. फर्नीचर आपकी एसेट है
and all assets are included in real account, so you have to apply real accounts rule. So what is the rule of real account? Debit what comes in and credit what goes out. तो जो भी चीज़ें आ रही हैं मीन्स जो भी फर्नीचर आ रहा है यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड, एंड जो भी फर्नीचर जा रहा है यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. क्लियर? सो यू हैव टू अप्लाई रियल अकाउंट्स रूल. आप पहले चेक करोगे कौन सा अकाउंट बना रहे हो, वो अकाउंट आपकी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है, या नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है. क्लियर? या फिर अगर आप मॉडर्न अप्रोच देखते हो मीन्स अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हो तो आपको ये देखना होगा कि पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, रियल में आ रहा है, नॉमिनल में आ रहा है, किस अकाउंट से रिलेटेड है, उसी का ही रूल आपने अप्लाई करना है. अगर आप मॉडर्न अप्रोच देखोगे देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ कैपिटल, इट्स एन एक्सपेंस, और यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ एसेट और रेवेन्यू. क्लियर? तो ये आपकी जो है फर्नीचर क्या है, एसेट है. सो अकॉर्डिंग टू एसेट्स, ऑल एसेट्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच ऑल एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस. So you have to write down the increase in furniture in debit side, decrease in furniture in credit side according to the modern approach rules and regulation. Clear? So first of all you have to clear that traditional and modern approach rules and regulation. क्लियर? आपको वो पहले करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप ये अकाउंट प्रिपेयर कर पाओगे. सो सपोज वी आर अप्लाइंग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑन दिस टाइप. हम दोनों ही वेज से करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज वी आर अप्लाइंग अ ट्रेडिशनल अप्रोच. सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच दिस इज़ अ रियल अकाउंट. Furniture is included in real account. So according to real accounts rule we have to debit all comes in means furniture which is in comes in form in business you have to write down in debit side. Amount of furniture which is in goes out form means ऐसी ट्रांजेक्शन जो फर्नीचर को कम कर रहे हैं गोज आउट फॉर्म में है यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. क्लियर? सो वेरी फर्स्ट इज फर्नीचर परचेज. दिस विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फर्नीचर, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्नीचर. ठीक है? आपने फर्नीचर को परचेज़ किया है, बिजनेस ने फर्नीचर को परचेज़ किया है. सो ये आपके जो बिज़नेस है उसमें फ़र्नीचर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट्स रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, ये आ रहा है फर्नीचर, डेबिट आप यहाँ राइट करोगे. ठीक है? किस में परचेज करोगे तो कैश जाएगा. सो यू हैव टू राइट डाउन ट्रांजेक्शन नंबर 1 कैश, 2 कैश you can also write, and in description you can write furniture purchased. Amount is 50,000 according to the transaction. Second is furniture sold. Costing rupees 10,000. 10,000 के फर्नीचर को आपने सेल किया है. So this amount of furniture is in goes out form. Debit what comes in, credit what goes out. ठीक है? तो ये गोज़ आउट हो रहा है, फर्नीचर जा रहा है बिजनेस में से, यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो सेकंड ट्रांजैक्शन कैश, सेल ऑफ फर्नीचर, डिस्क्रिप्शन 10,000 अमाउंट. नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन इज फर्नीचर परचेज्ड, अगेन परचेज, सो यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू द सेम रूल. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज फोर्थ वन इज ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड. ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड मीन्स आपका पुराना फर्नीचर था वो ख़राब हो गया है, 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर था वो. सो यू हैव टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो ये 5,000 का फर्नीचर आपका वेस्ट हो गया है. सो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस साइड, क्रेडिट साइड. फर्नीचर डिस्कार्डेड, अमाउंट इज़ 5,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. डेप्रिसिएशन बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. डेप्रिसिएशन मीन्स यू कैन से परमानेंट एंड कॉन्टीन्यूस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो परमानेंटली कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती है ड्यू टू यू कैन से कॉन्टीन्यूसली यूज़, और यू कैन से ड्यू टू वियर एंड टीयर. ठीक है? टूटने फूटने की वजह से या फिर ऑब्सोलेंस की वजह से. सो दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन. आप एक नई कार लेके आए हो और उसमें लाते ही डेंट पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज़ हो जाएगा वो भी डेप्रिसिएशन है. इन द सेम फॉर्म अगर आप उसको 1 ईयर यूज़ करके बाद में सेल करते हो, इवन आफ्टर 1 डे भी सेल करते हो, तो भी आपको वो सेम प्राइस पे नहीं सेल होगी जिस प्राइस पे आप लेकर आए थे. तो वो अमाउंट उसके डेप्रिसिएशन के वे में हम अकाउंट्स की बुक्स में राइट करते हैं. सो इट्स ऑल्सो अ डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, क्योंकि 3,000 का डेप्रिसिएट हो गया फर्नीचर, 3,000 उसके वैल्यू में कमी आ गई है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो 3,000 के फर्नीचर आपका
बिजनेस से चला गया, एक तरह से कमी आ गई है उसके वैल्यू में. सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड depreciation on furniture 3000. Now you have to total both the sides. In debit side you have 65,000 amount as a total. In credit side you have only three figure, 10,000, 5,000 means 15,000 and 3 18,000. So the total of credit side is 18,000 and total of debit side is 65,000. Now according to the procedure of balancing of an account, first step is you have to find out the balance as we done previously. Then you, according to the second step, we have to find out the difference between the total of both the sides. So the difference is 65,000 minus 18,000. 10, 15, 18. So 65 minus 18 is equal to 47,000. So your balance is 47,000. And which side is shorter? Credit side is shorter. So you have to write down the difference in shorter side, means 47,000 you have to write down here by writing by balance carried down. Clear? Now the total of both the sides is equal to 65. Clear? अब यहाँ पे तो आपको डेट मेंशन नहीं है ना. इफ some dates are given to you, then on the last date, means जिस डेट पे भी आप ये बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हो, on the very next day you have to write down the amount to balance BD. You have to write down to balance BD on the very next day. ठीक है, जिस डेट पे आपने बैलेंस निकाला है, फाइंड आउट किया है, उससे नेक्स्ट डेट पे आप उसको अपोजिट साइड पे राइट करोगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगा आपका 47,000 का. इसका मीन्स क्या है? देखो, सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि एसेट्स है ये, और सारी एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं. डेबिट बैलेंस का मीन्स ऑल दी एसेट्स ऑलवेज हैविंग means more total in debit side as compare to credit side. means जितनी भी assets का आप टोटल करोगे, उनका टोटल हमेशा डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा कम आएगा, बिकॉज ऑल दी एसेट्स एंड ऑल दी एक्सपेंसेस ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस. ठीक है, तो अब इसका मीन्स क्या हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 65,000 के फर्नीचर को परचेज़ किया. आपके पास बिज़नेस में 65,000 का फर्नीचर आया और आपके बिज़नेस से 18,000 का फर्नीचर चला गया, किसी भी फॉर्म में चला गया. सेल हो गई, पुराना हो गया, वेस्ट हो गया, डेप्रिसिएट हो गया, किसी भी फॉर्म में चला गया. नाउ द बिज़नेस इज़ हैविंग 47,000 फर्नीचर. ठीक है, अब बिज़नेस के पास ₹47,000 का फर्नीचर अवेलेबल है, बिकॉज ऑल द एसेट्स ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस. ठीक है, तो इसकी हमेशा डेबिट साइड ग्रेटर होगी, और आपका यही 47,000 यहाँ हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मीन्स क्या है, इसलिए लिखा है कि ये आपका नेक्स्ट डेट पे फॉरवर्ड हो गया है. ठीक है, ब्रॉट डाउन हो गया है कि अब आपके सपोज ये 31 मार्च का था. ठीक है, तो 1 अप्रैल को आपके पास 47,000 का फर्नीचर अवेलेबल है. ये इसका मीन्स होगा. क्लियर? You have to remember some points regarding this topic, means balancing of an account. So you have to keep in mind that term and expenses balance is transferred to trading and profit and loss accounts. ठीक है, आपकी जितनी भी इनकम्स हैं, सपोज कमीशन रिसीव्ड इज़ देयर, रेंट रिसीव्ड इज़ देयर, डिविडेंड रिसीव्ड इज़ देयर, यू कैन से एनी अदर डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ देयर. क्लियर? सो ये जो इनकम्स हैं इन द सेम फॉर्म एक्सपेंसेस लाइक ट्रेड एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेड, डिस्काउंट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड. सो इन इनकम्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस को हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन के कंप्लीट होने पर जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं. मीन्स यू हैव टू राइट डाउन इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. बोथ आर नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, इसमें हम जो है टू बैलेंस या बाय बैलेंस राइट नहीं करते हैं. ठीक है, आप इसको जो है अगर एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, मींस डेबिट साइड हमेशा एक्सेस में रहेगी, डेबिट्स का टोटल एक्सेस में रहेगा, तो आपको क्रेडिट साइड में शॉर्टर साइड में राइट करना होगा. सो यू हैव टू राइट डाउन बाय ट्रेडिंग अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन द सेम फॉर्म ईच एंड एवरी इनकम हैज़ क्रेडिट बैलेंस. सो the total of credit side is always more than as compared to debit side. So you have to write down the balance in debit side, in shorter side. So in टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा या फिर टू
ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपके इनकम और एक्सपेंसेस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। सेम फॉर्म द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल अकाउंट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। मीन्स यहाँ पे आपको बाय बैलेंस और टू बैलेंस राइट करना होगा। बाय बैलेंस CD और टू बैलेंस CD यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। कहाँ पर? एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में और कैपिटल में। बट इनकम में और एक्सपेंडिचर में आपको टू और बाय बैलेंस नहीं लिखना, वहाँ पे टू और बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है या किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसका मीन्स क्या है। सपोज आपको कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ गया, क्योंकि कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे होती है। ठीक है, बिज़नेस के लिए हमेशा, क्योंकि अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं ना तो हम बिज़नेस और बिजनेसमैन को अलग अलग एज्यूम करते हैं, सेपरेट एंटाइटी एज्यूम करते हैं। सो जब बिजनेसमैन ने बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया तो बिज़नेस के लिए वो एक बर्डन रहता है, लायबिलिटी रहती है। बिजनेस इज़ लाइबल टू पे दैट अमाउंट टू बिजनेसमैन विद सम रिवॉर्ड और यू कैन से विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ यू कैन से कैपिटल ऑलवेज शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इन द सेम फॉर्म, इफ यू आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लोन और यू कैन से क्रेडिटर्स और BPs, देन यू कैन से दैट दीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस जो है वो लाइबिलिटीज़ के होते हैं। इन द सेम फॉर्म, ऑल द एसेट्स आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस, वेदर इट इज़ अ फिक्स्ड एसेट और अ करंट एसेट्स, ऑल द एसेट्स आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, वो आपकी प्रॉपर्टीज शो होंगी बिजनेस की। इन द सेम फॉर्म, इफ डेबिट डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, रेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स कि उनके डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये आपके एक्सपेंसेस डील होंगे। इन द सेम फॉर्म, क्रेडिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड मीन्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन एज कम्पेयर टू डेबिट साइड। आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा डेबिट साइड के कंपैरेटिवली। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या ऐसी ही कोई और इनकम है और उनके क्रेडिट बैलेंस आते हैं तो ये आपकी इनकम्स की तरह डील होगी। मतलब अगर किसी इन टर्म्स का क्रेडिट बैलेंस आता है तो आपकी इनकम है, अगर इन टर्म्स का डेबिट बैलेंस आता है तो आपके एक्सपेंस है। इन द सेम फॉर्म, सभी एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा और वो आपकी प्रॉपर्टीज़ की तरह डील होंगी। अगर बैंक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, BPs हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सब का अगर क्रेडिट बैलेंस आता है इट मीन्स वो आपके लिए बर्डन है, लाइबिलिटी है। बिजनेस इज लाइबल टू पे दैट अमाउंट टू दैट कंसर्न पार्टी। इन द सेम फॉर्म, इफ capital account is showing credit balance, then it represents the amount invested by the owner in the business. Okay.